all of you, myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today I will discuss one very interesting topic, income tax and service tax, and it is for the current financial year 2021-22, and definitely assessment year would be 2020-23. Both I will discuss both old and new tax regime. So this video is very useful for forthcoming principal examination. So please my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to start. First one, you see gross salary under section 17 of income tax. It is related to 17(1). It is basic pay, dearness allowance DA fully taxable, transport allowance plus DA on it fully taxable, house rent allowance HRA part exempted. I will discuss under section 10(13)(a) partly HRA exempted, and I will discuss the calculation. City compensation allowance CCA is offered to the employees to meet the living expenses in areas like the metros and big cities, fully taxable. Entertainment allowance is offered to the employees for the expenses incurred on the hospitality of customer, part exempted. I will discuss under section 16. Project allowance for project related expenses, meals allowance for food expenses, and overtime allowance for working extra hours, fully taxable. Child educational assistance CA part exempted under section 10(14). Under section 10(14), so partly CA exempted. I will discuss. Hostel subsidy part exempted. Again, it is under 10(14). Under section 10(14), partly hostel subsidy also exempted. Arrears also, it is the part of the gross salary. Gratuity, clear. Leave encashment at the time of leave travel concession and leave encashment at the time of retirement, both included in gross salary. We know that when we are taking LTC, leave travel concession, then maximum 10 EL can be encashed. So it must be the part of the gross income, clear. And leave encashment at the time of retirement also it is included, but again under section 10 it must be deducted. I will discuss. Bonus, annuity pension and pension under CCS, pension rule 1972, special allowance, special duty allowance, top locality allowance, national pension scheme, गवर्नमेंट शेयर. तो ये सब 17(1) जो ग्रॉस सैलरी में ये सब इंक्लूड होगा. तो आपको यहाँ पर याद रखना है डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस DA on it, and other allowances, everything included in gross income. Then some allowances partly exempted under different sections. I will discuss in subsequent time. So same 17(2) value of perquisites, again it is very important one. It is the part of the gross salary, because gross salary 17(1), 17(2) plus 17(3). So 17(1) already I have discussed under section 17(1). Under section 17(2) value of perquisites, government employees, just here you detect two things, very important one. We are paying concessional license fee for accommodating in government quarters. Okay, we are residing in government quarters and we are paying yearly, we are paying concessional license fee. It is the part of perquisites. Another very important one, reimbursement of medical expenditure. Reimbursement of medical expenditure, it is also value of perquisites. It is both very important one. One is the license fee for rent free accommodation provided by the employer, and second one reimbursement of medical expenditure. Both are very important one. Both are the part of 17(2).
17.2 it is related to the value of perquisites. Next one, other things you remember, value of any amenity or benefit granted at a concessional rate, free electricity, gas and water supply, also minimum fee we paid to the employer, expenditure on foreign travel and stay during medical treatment. So ये सब आएगा वैल्यू ऑफ perquisites में. Clear? Also it is the part of the gross income. Third one, profits in lieu of salary, 17.3. It includes the amount of any compensation due to or received by an assessee from his employer or former employer at or in connection with the termination of his employment or the modification of the terms and conditions relating thereto. So in this section, basically in profits in lieu of salary, suppose due to modification of some terms and conditions, we are getting some compensation from the employer, or in some cases due to termination of employment, at that time also the employee receives some compensation from the employer. So it is the part of the profits in lieu of salary. So basically gross salary, it is 17.1 plus 17.2 plus 17.3. Clear? In 17.1, under section 17.1, basic pay, dearness allowance, travelling allowance plus DA on it and other allowances, it must be added. 17.2, it is the value of perquisites, and in this case very important one, you remember two things. One is the medical reimbursement and another one is the concessional fee, basically for accommodation facility, rent free accommodation facility, it is a concessional license fee we are paying. 17.3, it is profits in lieu of salary, already I told. Clear? So ये तीनों को ऐड करने से हमको ग्रॉस सैलरी मिल जाता है, राइट? चलो, इनकम जो पार्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. Also we can get question related to this. Income is classified under the following heads. Actually 5 heads are there. Question is coming. Under how many heads income is calculated related to the income tax? So 5 heads. One is the salaries. Second one, income from house property. ये बहुत दोनों important है. Profits and gains of business or profession. Fourth one, capital gains. Fifth one, income from other sources. But first, second and 5, very important one for employees. Clear? Salaries, income from house property and income from other sources. Other things actually it is not required basically for the employees. Clear? So आगे मैं इसको डिस्कस में करूँगा. चलो, टैक्स एग्जेम्पशंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 10. ओके, टैक्स एग्जेम्पशंस और टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10. सो 10.5, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. इट इज़ रिलेटेड टू द लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC. हमको मालूम है कि जो 4 ईयर ब्लॉक पीरियड होता है, हमको 2 LTC मिलता है, एक होम टाउन LTC और एक ऑल इंडिया LTC. सो 4 ईयर जो होता है, जो 1 इट मीन्स ब्लॉक होता है 4 ईयर्स, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है 2 ईयर्स. सो फर्स्ट 2 ईयर्स में होम टाउन मिलेगा, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में हमको ऑल इंडिया LTC मिलेगा. तो इसमें आपको याद रखना है, यदि LTC में हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड सैंक्शन बाय द ऑफिस, कि हाउ मच अमाउंट वी जस्ट इनकर एक्सपेंडिचर इन आवर ट्रैवलिंग, so it must be deducted under section 10.5. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको याद रखना है कि LTC के टाइम में हमको जितना हमारा ऑफिस जितना पैसा सैंक्शन करता है, और आप बेसिकली जितना पैसा सैंक्शन होगा वही डिडक्शन होगा. ओके, और जितना पैसा सैंक्शन होगा वही हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, राइट? वो इतना ही आपको याद रखना है. 10 अंडर सेक्शन 10.5 में वो डिडक्ट होता है, राइट? द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, लिमिटेड टू अमाउंट एक्चुअली स्पेंट एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट्स एज स्पेसिफाइड. द एग्जेम्पशन कैन बी अवेल्ड फॉर 2 जर्नीज इन ए ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स. Exemptions shall be available for journey performed by shortest route and by prescribed mode of transportation in prescribed situations. So we know that. So जितना मनी सैंक्शन करता है ऑफिस फाइनली हमको LTC के लिए, सो उतना अमाउंट एक्चुअली अंडर सेक्शन 10.5 में वो डिडक्ट होगा. क्लियर?
नेक्स्ट को चलेंगे। फॉरेन अलाउंसेस और परक्विसाइड्स पेड और अलाउड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, इट इज अंडर सेक्शन 10(7). फॉरेन अलाउंसेस और परक्विसाइड्स पेड और अलाउड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, एंटायर अमाउंट को जो भी परक्विसाइड्स मिला है, जो एम्प्लॉइज़ आउटसाइड इंडिया में काम करता है और गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉरेन अलाउंसेस और उसको जो परक्विसाइड्स मिलता है उसको गवर्नमेंट अलाउ करता है, फॉरेन अलाउंसेस और परक्विसाइड्स पेड और अलाउड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, पूरा एंटायर अमाउंट को अंडर सेक्शन 10(7) में ओके डिडक्ट किया जाता है। पहले उसको वहाँ पर ऐड किया जाएगा ग्रॉस सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन में वही होगा, जितना लीव ट्रैवल कंसेशन में आपको मिलेगा वो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, फिर उसको माइनस किया जाएगा अंडर सेक्शन 10(5) में, ये जो मैं बताया था। क्लियर? लीव ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड लिमिटेड टू अमाउंट एक्चुअली स्पेंट अंडर सेक्शन 10(7). क्लियर? सेक्शन 10(10) डेथ कॉम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, चाहे रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी जो मिलता है वो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और यहाँ पर टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। अंडर सेक्शन 10(10) में पहले ऐड होगा और यहाँ पर उसको पूरा अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाएगा। जो ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा और डेथ ग्रेचुइटी, डेथ होने से जो ग्रेचुइटी मिलेगा ओके वो पूरा टोटली एग्जेम्प्टेड होगा। पहले उसको ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाएगा, फिर डिडक्ट किया जाएगा। वही एलटीसी में जितना एलटीसी में जितना अमाउंट सैंक्शन हुआ वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, फिर उसको डिडक्ट किया जाएगा। राइट? नेक्स्ट 10(10)(a), ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मैक्सिमम जो पेंशन फिक्स होता है उसका 40% मैक्सिमम कम्यूटेड हो सकता है। तो अंडर सेक्शन 10(10)(a) कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पहले वो फर्स्ट ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और यहाँ पर टोटली ओके जितना कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिलेगा उसको अंडर सेक्शन 10(10)(a) में, अंडर सेक्शन 10(10)(a) में उसको पूरा डिडक्ट कर दिया जाएगा। राइट? उसको पहले ग्रॉस, सो अंडर सेक्शन 10 में जो भी एग्जेम्पशन है पहले वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। क्लियर? ये सेक्शन को याद रखना है, ये सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन यहाँ आएगा। नेक्स्ट वन 10(10)(a), ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न्ड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप जानते हो कि रिटायरमेंट के टाइम में मैक्सिमम 300 EL को एनकैश कर दिया जाएगा। हमको मालूम है वही है जो जितना EL है सपोज सर्विस खाते में और मैक्सिमम 300 EL को एनकैश किया जाएगा। तो पहले जितना एनकैश होगा मैक्सिमम 300 EL, सो 300 EL से कम है तो उसको एनकैश किया जाएगा। ओके, सो हम ये भी देखेंगे कि EL प्लस HPL तो वो मैक्सिमम 300 होगा, मगर HPL को 2 HPL को एक फुल उसको कम्यूट करके एक फुल नहीं किया जाएगा। जैसे आपका सपोज खाते में 270 EL है तो लीव सैलरी के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है? और 30 HPL को इट मीन्स फुल कम्यूटेड के हिसाब से 15 को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है अंडर सेक्शन 10(a), तो जो भी लीव एनकैशमेंट मिलेगा वो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और यहाँ पर टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 10(10)(a). नेक्स्ट वन वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, इट इज अंडर सेक्शन 10(10)(c). सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिया गया है कि कितना एग्जेम्पशन होगा, विच एवर इज लेस 1 और 2, दोनों 1 और 2 में जो लेस होगा उतना ही एग्जेम्प्ट होगा। Actual amount received as per the guidelines, that is to say list of the following: 3 months salary for each completed year of services. Each completed year of service में आप 3 months salary को consider कर लो। सेकेंड में salary at the time of retirement into number of months of services left for retirement. Clear? So ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। जब वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट होता है
तो फर्स्ट वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बीट ए में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 3 months सैलरी, जस्ट वी कैलकुलेट. नेक्स्ट वन सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, इसको कैलकुलेट करेंगे. और ₹5 लाख, ये दोनों में जो लिस्ट होगा उतना ही एग्जेम्प्ट होगा. पहले वैसे ही ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा. मैक्सिमम 5 लाख, ओके, मैक्सिमम 5 लाख एग्जेम्प्ट होगा. ये अंडर सेक्शन 10(10)(c). नेक्स्ट वन यहां पर दिया है, इफ द एम्प्लॉय हैज क्लेम्ड टैक्स रिलीफ. हम जानते हैं जब एरियर मिलता है हमको टैक्स रिलीफ मिलता है सेक्शन 89 में. यदि हम टैक्स रिलीफ लेंगे अंडर सेक्शन 89, तब ये जो 10(C) में है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट के लिए जो एग्जेम्पशन, वो नहीं होगा. ठीक है, तो हम टैक्स रिलीफ लेंगे. जैसे एरियर के हिसाब से हमको सपोज वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा, तो हम टैक्स रिलीफ लेंगे, तो उस केस में एक्चुअली वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा. जो अंडर सेक्शन 10(10)(C) में एग्जेम्प्ट होता है अप टू मैक्सिमम 5 लाख, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा. तो that thing already I have mentioned here. If the employee has claimed tax relief under section 89 of the Income Tax Act 1961 for the voluntary retirement compensation received, the exemption under section 10(10)(C) would not be allowed. Similarly, if the employee has claimed an exemption under this section on the compensation received, he or she would not be able to claim relief for such compensation under section 89. यदि अंडर सेक्शन 10(10)(C) में अप टू मैक्सिमम 5 लाख एग्जेम्प्ट होगा, तब हमको सेक्शन 89 में जब हमको एरियर मिलता है, जब हमको रिलीफ मिलता है, वो रिलीफ हम नहीं ले सकते, क्योंकि अंडर सेक्शन 10(10)(C) में ऑलरेडी हम हमारा अप टू इट मीन्स अप टू 5 लाख वो एग्जेम्प्ट हो चुका है, जो कैलकुलेशन है. तो यहाँ पर हम रिलीफ नहीं ले सकते, क्योंकि यदि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट का मनी हमको एरियर में मिलेगा. क्योंकि जो अंडर सेक्शन 89 है, जब एरियर मिलता है तब हमको एक 10(E) फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. और 10(E) में ठीक है, जो रिलीफ आएगा वो ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 89 में. और इसको याद रखना है, अंडर सेक्शन 89 जब हमको एरियर मिलता है, 2-3 साल का एरियर मिलता है, तब हमको फॉर्म 10(E) को फिलअप करना पड़ता है. ओके, और इस केस में हमको टैक्स रिलीफ मिलता है. चलो, अंडर सेक्शन 10(11) taxability of interest on provident fund on employees contribution in excess of ₹2.5 lakh per annum. It is with effect from फाइनेंशियल ईयर 2021-22. ये फाइनेंशियल ईयर से लागू है. जो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन अप टू 2.5 लाख, ओके, वो एग्जेम्प्टेड है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन पर annum. ओके, जो बेसिकली हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अप टू 2.5 लाख, ओके, इंटरेस्ट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन अप टू 2.5 लाख है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा. मगर 2.5 लाख के ऊपर हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होगा, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा. क्लियर? सो यहाँ पर याद रखना है, इसी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट है. यदि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बेसिकली प्रोविडेंट फंड केस में अप टू 2.5 लाख है और उसके ऊपर जो जितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन है. यदि कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख को क्रॉस कर गया, ओके, 2.5 लाख के ऊपर क्रॉस हो गया, और जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा 2.5 लाख से ज़्यादा, सपोज अभी हमारा कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, तो 2.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन है. तो नेक्स्ट उसके बाद कितना रहा? 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा. राइट? तो ये अंडर सेक्शन 10(11). 10(13) पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ऑन डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉई एट्सेट्रा सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस. तो जो भी सुपरएनुएशन टाइम में जो भी बेनिफिट्स मिलता है, तो वो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और यहाँ पर फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा अंडर सेक्शन 10(13) में. क्लियर? इसको थोड़ा याद रखना है.
1013A हाउस रेंट अलाउंस, वी नो दैट इन केस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस इट इज़ पार्टली एग्जेम्प्टेड। तो पहले जितना HRA आपको मिलेगा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। यहाँ पर देखेंगे कि कितना एग्जेम्पशन होगा, उसका रूल है। हम मंथली देखेंगे। फर्स्ट वन, 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो सिटीज़ एंड 40% ऑफ सैलरी फॉर अदर सिटीज़। फर्स्ट ऑप्शन, मेट्रो सिटीज़ में आप 50% सैलरी ले जाओ, सैलरी बेसिक पे प्लस DA, 40% सैलरी फॉर अदर सिटीज़, ये ऑप्शन वन। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो मंथली कितना HRA रिसीव होता है, इसको आप मंथली सपोज कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट वन, थर्ड बिट, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। आप 10% ऑफ सैलरी निकाल दो। सैलरी में क्या बोला, बेसिक पे बेसिक सैलरी प्लस DA, बेसिक पे प्लस DA। तो आप 10% ऑफ सैलरी निकाल दो, उससे ज़्यादा कितना रेंट पेड कर रहे हो, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में जो लिस्ट होगा उसको लो। सपोज मंथली आप कैलकुलेट कर लो, तीनों ऑप्शन में जो लिस्ट होगा उसको लो, मंथली कैलकुलेट कर लो और उसको इंटू 12 कर दो, उतना ही एग्जेम्पशन होगा। तो जितना टोटल HRA आपको मिल रहा है वो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, और इस सेक्शन में 1013A में ये जो मैं कैलकुलेशन बताया, जो तीनों ऑप्शन है आप मंथली निकाल दो। 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो सिटीज, 40% ऑफ सैलरी फॉर अदर सिटीज। सेकेंड वन, एक्चुअल HRA रिसिप्ट मंथली। देन थर्ड वन, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी मंथली। आप मंथली में जो लिस्ट होगा निकाल दो इसमें, और उसमें 12 मल्टीप्लाई कर दो, उतना एग्जेम्पशन होगा। तो पहले हाउस रेंट अलाउंस ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। और यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। फुली टैक्सेबल इफ HRA इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई हु इज लिविंग इन हिज ओन हाउस और इफ ही डज नॉट पे एनी रेंट। यदि कोई एम्प्लॉई रिजाइडिंग इन हिज ओन हाउस और डज नॉट पे एनी रेंट, कोई रेंट नहीं पे कर रहा है और उसका खुद का घर में रहता है, उसको जो HRA मिलेगा वो उसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा ये सेक्शन में। अंडर 1013A में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, राइट। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1013A हाउस रेंट अलाउंस के लिए। इट इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय टू रिपोर्ट पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड टू द एम्प्लॉयर इफ रेंट पेड इज मोर दैन ₹1 लाख पर annum। यदि पर annum आप 1 लाख से ज़्यादा रेंट पेड कर रहे हो, तब जो लैंडलॉर्ड है उसका पैन नंबर एम्प्लॉयर को देना है। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका खुद का घर में रहते हो और आप HRA रिसीव कर रहे हो, तो कोई रेंट आप पे नहीं कर रहे हो, तो उस केस में जो भी HRA मिलेगा, ओके, वो तो ग्रॉस सैलरी में फर्स्ट ऐड होगा। तो इस सेक्शन में अंडर 1013A में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जब आप रेंट पेड कर रहे हो तब उस केस में मैं जो कैलकुलेशन बताया उसके हिसाब से एग्जेम्पशन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1014 को आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। 1014 पहले जितना चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा अभी 2250 के हिसाब से है मंथली, विदाउट एनी हॉस्टल एक्सपेंडिचर। तो जितना CA मिलेगा तो वो पहले ऐड होगा ग्रॉस सैलरी में। तो यहाँ पर जो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड के लिए 1200 रुपीज़ एग्जेम्पशन होगा, और 2 चाइल्ड के लिए मिलेगा। सपोज आपका 2 चाइल्ड है, आप CA ले रहे हो, तो जितना CA ले रहे हो उसको ऐड किया जाएगा पहले ग्रॉस सैलरी में, और यहाँ पर जो एग्जेम्पशन होगा वो 2400 होगा, क्योंकि इस चाइल्ड के लिए आपको ईयरली 1200 एग्जेम्पशन मिलेगा। 2 चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो वैसे ही 1014 में हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में तो जितना मिलेगा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। यहाँ पर एग्जेम्पशन का जब बात आएगा तो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड के लिए ईयरली 3600, क्योंकि ईयरली मंथली मिलेगा 300 रुपीज़ ईयरली, ओके 3600। तो 2 चाइल्ड के लिए वैसे ही 7200 एग्जेम्पशन होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1014 में आता है चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो जितना भी CA मिलेगा और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिलेगा तो सेपरेटली मिलता है, अलग अलग दोनों मिलता है, दोनों ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, और पर चाइल्ड के लिए 100 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्पशन होगा। तो
तो एक चाइल्ड के लिए 1200 एग्जाम्शन होगा इन केस ऑफ CA, और अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ओके, CA हम ले सकते हैं मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए, वहाँ पर 2400 एग्जाम्शन होगा यदि 2 चाइल्ड है। सिमिलरली हॉस्टल एक्सपेंडिचर मंथली 300 रुपीज़ एग्जाम्शन होगा और ईयरली 3600 होगा। वैसे ही 2 चाइल्ड के लिए हम लेते हैं तो 7200 यदि 2 चाइल्ड है। चलो 1014 ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। इट इज रिलेटेड टू द डिसेबल, बेसिकली ब्लाइंड और डीफ और डॉम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो इस केस में मंथली 3200 रुपीज़ ओके पर मंथ ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ ब्लाइंड, और इतना एग्जाम्शन होगा ₹3200 रुपीज़। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है फॉर कम्यूटेशन बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, वो टीए को फर्स्ट ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाएगा और उसके बाद मंथली 3200 के हिसाब से एग्जाम्प्ट किया जाएगा ओके अंडर सेक्शन 1014 में, मगर बट इट इज़ रिलेटेड टू द ब्लाइंड और डीफ एंड डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड ओके with disability of lower extremities. 1014 conveyance allowance granted to meet the expenditure on conveyance in performance of duties of an office. तो उस केस में जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उसको वहाँ पर ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाएगा, यहाँ पर माइनस किया जाएगा ओके। सिमिलरली 1014 एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफ़र। टूर और ट्रांसफ़र में जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल होता है यदि उसको ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाता है ओके, यहाँ पर उसको पूरा जितना एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर दिया जाएगा, एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मगर ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। अंडर सेक्शन 1014 स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस हिल एरियाज अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वेरीज फ्रॉम ₹300 पर मंथ टू ₹7000 पर मंथ। ठीक है, ये 300 to 7000 पर मंथ। ठीक है, तो स्पेशली कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, तो जो भी ये जो अलाउंस मिलेगा फर्स्ट ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, मगर एग्जाम्शन जब होगा अंडर सेक्शन 1014 में ये एग्जाम्शन कितना होगा ₹300 पर मंथ टू ₹7000 पर मंथ। सेक्शन 1014 बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस और डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस और डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, इस केस में जो भी अलाउंस मिलेगा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और यहाँ पर एग्जाम्शन जब होगा तो एग्जाम्शन बेसिकली ₹200 पर मंथ टू ₹1300 पर मंथ, जो भी डिसाइड होगा उस एरिया में उसके हिसाब से होगा, मगर जो लिमिट होगा ₹200 पर मंथ टू ₹1300 पर मंथ, उतना ही एग्जाम्शन होगा। नेक्स्ट वन 1014 ट्राइबल एरिया अलाउंस गिवन इन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उसके इसमें जो ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलेगा ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और यहाँ पर एग्जाम्शन मैक्सिमम ₹200 पर मंथ होगा। क्लियर, ये हो गया अंडर सेक्शन 10 में। तो अंडर सेक्शन 10 में जो भी पार्टली एग्जाम्शन हुआ कि होल एग्जाम्शन हुआ, पहले उसको ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाएगा और उसमें हमको उतना लिमिट में एग्जाम्शन मिलेगा। तो सेक्शन को आपको याद रखना है क्योंकि रिलेटेड टू द सेक्शन क्वेश्चन इज कमिंग। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है LTC 10.5, ग्रेचुइटी 10.10, क्लियर। सिमिलरली कम्यूटेड पेंशन 10.10A, लीव एनकैशमेंट 10.10AA, ये सब सेक्शन को अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर पहले वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और फुली एग्जाम्प्टेड होगा और पार्टली एग्जाम्प्टेड होगा, जैसे 10.13A HRA, तो उसका कैलकुलेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये करेंट ईयर के ऊपर मेरा जो ये वीडियो है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और इस करेंट ईयर के लिए असेसमेंट ईयर है 2022-23, नहीं कि ये करेंट ईयर के लिए लागू है। तो 16IA बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओके। लास्ट में मैं न्यू टैक्स रिजाइम के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो 16IA स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 सैलरीड एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। 16II एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मैक्सिमम 5,000 ओके, मैक्सिमम 5,000 उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा और अदरवाइज 1/5 ऑफ द सैलरी, दोनों लेना है, 1/5 ऑफ द सैलरी ओके, और यहाँ पर देना है एक्चुअल और एट द रेट ऑफ 1/5 ऑफ द सैलरी व्हिच एवर इज लेस, मगर लिमिटेड टू ₹5,000, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 16II में।
तो इसमें याद रखना है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस में मैक्सिमम 5000 एग्जेम्प्ट होगा। कैलकुलेशन में एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस ले जाओ और 1/5 ऑफ द सैलरी लो, जो उसमें लेस होगा उसको लेना है, मगर मैक्सिमम 5000 उसमें एग्जेम्प्ट होगा। 16 III एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो प्रोफेशनल टैक्स हम देते हैं, 16 III इसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स बोलते हैं, ओके, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो तीनों सेक्शन को यहाँ पर याद रखना है, 16IA, 16II, 16 III। अभी चलेंगे नेक्स्ट इनकम, ये तो सैलरी रिलेटेड चला गया। तो जो 5 हेड्स ऑफ इनकम था, ये सेकंड है, अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। सपोज हमारा जो हाउस बिल्डिंग है, हम इसको रेंट में दिया है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? रेंट में दिया है, लेट आउट प्रॉपर्टी। सपोज हमको ग्रॉस रेंट हमको मिल रहा है 1 लाख। मेरा एक एग्जाम्पल आप समझ लो, क्लियरली समझ जाओगे। तो ग्रॉस रेंट 1,30,000, एक अजम्पशन में मैं डाला हूँ 1,30,000 है। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000 हम दे रहे हैं, उससे माइनस करना है जो ग्रॉस रेंट से। ग्रॉस रेंट मीन्स हमको 12 मंथ्स में 1,30,000 रेंट मिल रहा है, म्युनिसिपल टैक्स हम 10,000 दे रहे हैं, तो उसको माइनस कर दो, तो नेट एनुअल वैल्यू हमको मिल गया। नेट एनुअल वैल्यू 1,20,000, ग्रॉस रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्स 1,20,000 हो गया। और भी डिडक्शन आएंगे। तो एक डिडक्शन है सेक्शन 24A में 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। जो नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पर 1,20,000 हुआ, उसका 30% को आप डिडक्ट कर दो। तो 1,20,000 का 30% 36,000, ये सेक्शन 24A में डिडक्ट होगा, राइट। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में, यदि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यदि आप होम लोन लिया है, जैसे आप कोई रिपेयरमेंट की, रिकंस्ट्रक्शन की, रिनोवेशन, ये सब करने के लिए आप होम लोन लिया है, तो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ पर उसके ऊपर पूरा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। सपोज मेरा एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जो भी होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा, बाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पूरा हम यहाँ पर लेंगे। तो सपोज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन होम लोन, सपोज मेरे हिसाब से 2.5 लाख से, तो ये दोनों डिडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 24A में इट इज 31 डिडक्शन इज 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू हमको कैसे मिला ना? ग्रॉस रेंट माइनस जो टैक्स हम म्युनिसिपैलिटीज को पेड कर रहे हैं, उसमें हम दो डिडक्शन आता है। 24A में 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, और 24B में जो बोरोड कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसे हम होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर दोनों को जो 36,000, 2.5 लाख, दोनों को ऐड करके 1,20,000 से उसको माइनस करो, वो आ जाएगा नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव मीन्स वो लॉस है। इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके, नेट एनुअल वैल्यू माइनस बोथ डिडक्शंस 24A 24B, दोनों को ऐड कर दो। दोनों डिडक्शंस को हम ऐड करके 1,20,000 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा माइनस 1,66,000 आ गया। तो मगर ये जो आएगा, जो लॉस आएगा, नेगेटिव मीन्स लॉस, ये रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, आपको याद रखना है। ITR 1 जब आप फील करोगे, एक 1 हाउस प्रॉपर्टी होता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन जो है 2 लाख है। अभी 2 हाउस प्रॉपर्टी के लिए मिलता है, और आप 2 लाख को क्रॉस करोगे तो ITR 2 में आपको फिलअप करना है, ठीक है। मगर यहाँ पर आपको याद रखना है रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख जो लॉस होगा। तो यहाँ पर माइनस 1,66,000 है, उसको डायरेक्टली डिडक्ट कर। जो हमारा नेट इनकम जो अभी हम निकाला, ग्रॉस इनकम, और जो अंडर सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशंस था, अंडर 16 में जो एग्जेम्पशंस था, उसके बाद जो नेट इनकम मिला, इससे 1,66,000 को हम पूरा डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ये लॉस हुआ, नेगेटिव आ गया। यदि प्लस आता तो उसको ऐड करते नेट इनकम में, क्योंकि अभी हम नेट इनकम निकल चुके हैं। ग्रॉस इनकम माइनस एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 माइनस एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 16, उसके बाद हमको नेट इनकम मिला। तो यहाँ पर लॉस हो गया, जो लेट आउट प्रॉपर्टी में हमको लॉस हो गया, नेगेटिव आ गया, तो उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 1,66,000 को माइनस करेंगे। और ये रेस्ट्रिक्टेड कितना होगा? अप टू 2 लाख, राइट। तो मैक्सिमम लॉस सेटअप इन अदर हेड्स ऑफ इनकम अलाउड इन ए फाइनेंशियल ईयर इज लिमिटेड टू ₹2 लाख। ये कैलकुलेशन है लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। यदि हमको रेंट मिल रहा है, हम हमारा प्रॉपर्टी को रेंट के आकार में दे दिया है, तो यहाँ पर और कुछ चीज को याद रखना है। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी द टैक्स पेयर कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। 24B में, सेक्शन 24B में क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है,
द टैक्स पेयर कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको याद रखना है, लेट आउट प्रॉपर्टी में हम जो होम लोन लिया है किस पर्पज के लिए लिया है? परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन। इसके लिए जो हम जो बोरो किया है, जो होम लोन लिया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसको पूरा, उसका कोई लिमिट नहीं है, पूरा डिडक्शन किया जाएगा। मगर जो अल्टीमेटली जो लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी में होगा, सपोज नेगेटिव में लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी आएगा, वो मैक्सिमम 2 लाख रिस्ट्रिक्टेड होगा। इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, टॉप अप लोन, कभी कभी हम टॉप अप लोन लेते हैं रिपेयर रिनोवेशन के लिए, और टॉप अप लोन में जो टॉप अप होम लोन होता है उसमें जो भी इंटरेस्ट होता है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो भी यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट को कोई ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, जो हम टॉप अप लोन होम लोन लेंगे रिनोवेशन रिपेयर के लिए, उसमें भी जो इंटरेस्ट होगा उसका कोई लिमिट नहीं है, मगर अल्टीमेटली जो लॉस होगा वो 2 लाख से को क्रॉस नहीं करेगा, -2 लाख जो है, मैक्सिमम 2 लाख डिडक्ट होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेकंड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी में हम रहते हैं, हम रेंट में नहीं दिया, सपोज इट इज माई प्रॉपर्टी एंड आई एम रिजाइडिंग इन माई प्रॉपर्टी, ओके, इट मीन्स आई डू नॉट गिव माई प्रॉपर्टी एज ए रेंट। तो इस केस में क्या होगा, कोई तो रेंट नहीं मिल रहा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है, म्युनिसिपल टैक्सेस तो नहीं है, नेट एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा। क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू कैसे होता है ना, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ पर तो हम रेंट हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो ये सब नील आ जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में यहाँ पर भी 30% होता है, जो नेट एनुअल वैल्यू होता है, क्योंकि उसमें हमको रेंट मिलता है, ग्रॉस रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्स, जो आएगा वो नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जो डिडक्शन सेक्शन 24A में हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू बाय एन भी 0 है। यहाँ पर जो सेक्शन अंडर सेक्शन 24B में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो आपको जब ITR आप फिलअप कर रहे हो ना, वहाँ पर ऑप्शन है लेट आउट प्रॉपर्टी ना सेल्फ यूज्ड प्रॉपर्टी। आप सेल्फ यूज्ड प्रॉपर्टी करोगे तो ये जो सेक्शन 24B, उसमें मैक्सिमम 2 लाख इंटरेस्ट, जो होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, मैक्सिमम 2 लाख एग्जेम्पशन होगा, मैक्सिमम 2 लाख, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 लाख मैक्सिमम। तब यहाँ पर माइनस हो गया 2 लाख, तो डायरेक्टली वो नेट इनकम से 2 लाख माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विल बी आइदर नील और नेगेटिव टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। यहाँ पर जो है दोनों है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इन केस ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड ₹2 लाख और ₹30,000। तो अभी हम देखा, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, बेसिकली सेल्फ यूज प्रॉपर्टी में 2 ऑप्शन है, एक में हमको मैक्सिमम एग्जेम्पशन 2 लाख मिलेगा और एक में 30,000 मिलेगा। तो ये 30,000 ये क्या है हम देखेंगे। तो हमको तो पता चला कि जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, तो वो मैक्सिमम 2 लाख एग्जेम्पशन है इन केस ऑफ सेल्फ यूज प्रॉपर्टी। तो अभी हम उसको देखेंगे। हाउएवर इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, aggregate deduction under section 24B cannot exceed ₹2 lakh or ₹30,000 as the case may be. If all the conditions are satisfied, then the limit in respect of interest on borrowed capital will be ₹2 lakh. यदि जो आगे में जो कंडीशंस में डिस्कस करूंगा, वो कंडीशंस हम फुलफिल करेंगे, तब हम जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है वो मैक्सिमम 2 लाख एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो 30,000 मैक्सिमम एग्जेम्प्ट होगा। तो अभी हम देखेंगे, capital is borrowed on or after 1st April 1999. Capital is borrowed for the purpose of acquisition or construction, not for repair, renewal, reconstruction. यहाँ पर नहीं है। जो हम होम लोन लिया है उसको कौन सा पर्पज के लिए, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई रिपेयर, रेन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए नहीं। एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द कैपिटल वाज बोरोड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में हम कैपिटल बोरो किया, उसका 5 years के अंदर हमको एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस फुलफिल होगा तो हमको 2 लाख एग्जेम्पशन मिलेगा। ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो हमारा मैक्सिमम
टैक्स एग्जेम्पशन जो होगा सेक्शन 24B में जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो 30,000 होगा। क्लियर? कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। पर्पज किस पर्पज के लिए बोरो किया गया? एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। और जिस फाइनेंशियल ईयर में बोरो किया गया उससे आप काउंट कर लो विद इन 5 ईयर्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड। ओके, ये कंडीशन फुलफिल होगा तो हमको 2 लाख एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में, अदरवाइज 30,000 एग्जेम्पशन मिलेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ टॉप अप लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस। सपोज हम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, हम हमारा खुद का घर में रहते हैं, कोई टॉप अप लोन ले लिया, टॉप अप होम लोन तो है, अभी एक टॉप अप होम लोन ले लिया फॉर इनोवेशन और रिपेयर, उसमें मैक्सिमम 30,000 एग्जेम्पशन होगा। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन, मैक्सिमम 30,000 याद रखना है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में। यदि हम टॉप अप लोन लेंगे तो जो डिडक्शन मैक्सिमम होगा किसमें, जो टॉप अप लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, ओके, इंटरेस्ट ऑन टॉप अप लोन, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन होगा ₹30,000। यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया, एज यूजुअल मैनर इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो है 1,80,000 है। हम एक टॉप अप लोन लिया है और उसमें हमको इंटरेस्ट हमारे ऊपर इम्पोज हो रहा है ₹40,000। टोटल इंटरेस्ट पे ₹2,20,000, मगर अंडर सेक्शन 24B में मैक्सिमम 2 लाख एग्जेम्पशन होगा। और यहाँ पर याद रखना है, जो रिनोवेशन के लिए जो टॉप अप लोन होम लोन लिया है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके ऊपर मैक्सिमम 30,000 एग्जेम्पशन होगा, मैक्सिमम 30,000। तो ये दोनों मिलाकर होम लोन, नॉर्मल होम लोन प्लस टॉप अप लोन दोनों मिलाकर वो 2 लाख होगा, मगर मैक्सिमम एग्जेम्पशन 2 लाख होगा, मगर जो टॉप अप लोन है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके ऊपर मैक्सिमम 30,000 एग्जेम्पशन होगा, राइट? चलो नेक्स्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। डिडक्शन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। कभी कभी हम होम लोन लिया है और हमारा प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में जो भी हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में जो भी हम होम लोन लिया है और अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में हम होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा कंस्ट्रक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो रहा है उसको देख लीजिए। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट होगा उसका प्रेसीडिंग ईयर को चले जाओ, उसका प्रेसीडिंग ईयर अप टू मार्च 31 तक आप कितना इंटरेस्ट दिया है आप देख लो। और एक बार बता रहा हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में जो भी हम होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में, उसका प्रेसीडिंग ईयर को चले जाओ, अप टू 31 मार्च कितना हम इंटरेस्ट दिया है देख लो, क्योंकि वहां पर हमको एग्जेम्पशन नहीं मिला है। तो उसको हम 5 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट कैसे काउंट किया जाएगा ना, जो फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसी से आप काउंट कर लो 5 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। तो जितना अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में जितना हम इंटरेस्ट पेड कर चुके हैं उसको 5 इंस्टॉलमेंट, उसको डिवाइड बाय 5 कर लो। और जिस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसी ईयर से आप, उसी ईयर फर्स्ट होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देन नेक्स्ट 4 सक्सीडिंग इंस्टॉलमेंट्स है, तो उसके हिसाब से जो एज यूजुअल नॉर्मल होम लोन इंटरेस्ट है प्लस उसको ऐड करके ओके वो डिडक्ट होगा और मैक्सिमम 2 लाख होगा। तो वही चीज में लिख दिया है यहाँ पर, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट दैट एन असेसी पेज व्हाइल द रेसिडेंशियल हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड व्हेन द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। दिस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड ओनली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन इज फिनिश्ड। जब अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में होम लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होगा, बट टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। दिस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड, जो प्री कंस्ट्रक्शन टाइम में जो भी हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं ओके उसके ऊपर जो भी एग्जेम्पशन होगा वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद होगा। द पीरियड फ्रॉम बोरोइंग मनी until 31st March immediately preceding the year of completion of construction of the house is called the pre-construction period. Pre-construction period क्या है? जिस डेट में हम बोरो किया उसी डेट से काउंट कर लो, और जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका प्रेसीडिंग ईयर को चले जाओ मार्च 31 तक।
हम उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलेंगे। हाउएवर द इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन, जो प्री कंस्ट्रक्शन टाइम में हम इंटरेस्ट पेड किया है, नेमली द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज अलाउड एज ए डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा उसी ईयर से हम क्या करेंगे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में हम जितना होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया है उसको 5 इंस्टॉलमेंट के आकार कर देंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में हम जितना भी इंटरेस्ट दिया है कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, जिस डेट में आप होम लोन लिया और जिस ईयर फाइनेंशियल ईयर में, सपोज इस फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो उसका प्रेसीडिंग ईयर क्या है 2021 है, उसका मार्च 31 तक ले जाओ, वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। उसमें जितना आप इंटरेस्ट दिया है, कोई तो एग्जेम्पशन नहीं मिला है, अभी इसी ईयर में हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ तो आप जितना इंटरेस्ट दे चुके हो प्री कंस्ट्रक्शन टाइम में उसको 5 में डिवाइड कर लो। 5 में डिवाइड करने से हमको इंस्टॉलमेंट मिल गया, तो 5 इंस्टॉलमेंट में आकार में हमको देना है। एज यूजुअल इस ईयर में हमको जितना इंटरेस्ट देना है प्लस नॉर्मल होम लोन इंटरेस्ट देना है प्लस इंस्टॉलमेंट। तो एक एग्जाम्पल में दे दिया, देख लो। कुणाल टुक होम लोन अमाउंट ₹30 lakhs, टुक लोन ऑन डेटेड जून 2019, EMI ₹25,000, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन जुलाई 2021, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ जुलाई 2021। तो यहाँ पर आपको देखना है जून 2019 में वो लोन लिया, तो यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप फर्स्ट काउंट कर लो। यहाँ पर जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा जून 2029 टू मार्च 31, 2021, क्योंकि जुलाई 2021 जो है ये इस करेंट फाइनेंशियल ईयर है, ये करेंट फाइनेंशियल ईयर है, उसका प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को चले जाओ मार्च 31 तक, उसका प्रेसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021, तो उसका मार्च 31 तक चले जाओ। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया फ्रॉम जून 2019 टू मार्च 31, 2021, 31 मार्च इमीडिएटली प्रेसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन 2021 ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। सपोज आप इतना इंटरेस्ट पेमेंट कर चुके हो अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज डिवाइड टू 5 इंस्टॉलमेंट्स, उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स पे डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ ईच इंस्टॉलमेंट 60,500। तो जो 5 इंस्टॉलमेंट्स हुआ, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। जो 5 इंस्टॉलमेंट्स होगा जो स्टार्ट होगा 2021, जिस ईयर में कंप्लीट हुआ, कब मेरा एग्जाम्पल में कंप्लीट हुआ, नॉट 2000, जुलाई 2021, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो ये जो 5 इंस्टॉलमेंट्स होगा वो 2021-22 टू 2025-26 तक, ओके, ईच इंस्टॉलमेंट 60,500। तो एज यूजुअल मैनर 2021-22 में जो इंटरेस्ट होगा होम लोन के ऊपर, सपोज मेरा एग्जांपल में ₹1,62,000 और प्री कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलमेंट जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 60,500, उसको ऐड कर लो 2,22,500। मगर सेक्शन 24B में मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना है 2 लाख है, तो बट मैक्सिमम डिडक्शन इज ₹2 लाख। तो ये कैलकुलेशन को अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम में उसको कैलकुलेट करना है, राइट। थर्ड इनकम चलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेक्शन 56, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इस यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल गया, द फॉलोइंग 3 कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर ए रिसिप्ट टू बी कैटेगराइज्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दैट इज एन इनकम, such income is not exempted under any other provisions of the income tax act, such income cannot be charged as salary, income from house property, profit and gains from business or profession or capital gains, okay। और कोई हेड में ये इनकम को ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, फैमिली पेंशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फैमिली पेंशन सभी समय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। फैमिली पेंशन पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द लीगल हेयर्स ऑफ डेड एम्प्लॉइज, क्वेश्चन इज कमिंग, okay। Family pension is included in which head of income? It is income from other sources। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, जो भी फिक्स डिपॉजिट आप रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भी लगता है, आप जानते हो। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा इसी में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा।
रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सपोज कोई रिफंड मिला है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, आपको सपोज इंटरेस्ट के आकार में कोई रिफंड दिया है, ओके आपका रिफंड मिलना था, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है, वो जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। और कैजुअल इनकम, और कभी कभी इसको याद रखना है, जैसे कोई सेविंग अकाउंट में जितना सेविंग अकाउंट आपका है और जो इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम में आप ऐड करोगे तो अंडर सेक्शन 80 TTA एक सेक्शन आएगा, उसमें आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन 10,000 मिलेगा। मगर सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट मिला है एग्रीगेट, उसको यहाँ पर फर्स्ट आपको शो करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर शो करोगे तो वहाँ पर सेक्शन 80 TTA जो सेक्शन है वहाँ पर आपको मैक्सिमम 10,000 एग्जेम्पशन मिलेगा। तो उसको आगे मैं डिस्कशन करूँगा। तो ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली पेंशन की जो इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट्स, ओके ये सब जो ये इनकम ऐड होता है ये अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में आता है अंडर सेक्शन 56। क्लियर? ये दिया है अंडर सेक्शन 56, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 56। क्लियर? चलो अंडर सेक्शन 80 को चलेंगे। अंडर सेक्शन 80 डिडक्शंस। अंडर सेक्शन 80 डिडक्शंस आपको यहाँ पर याद रखना है। अंडर सेक्शन 80 में फर्स्ट वन 3 चीज लेना है, 80C, 80CCC, 80CCD1। ये जो तीनों सेक्शन है, तीनों सेक्शन को मिला दो, उसमें मैक्सिमम एग्जेम्पशन 1.5 लाख है, कंफ्यूजन नहीं होना है। 80C, 80CCC, 80CCD1 तीनों में एग्रीगेट में मैक्सिमम 1.5 लाख एग्जेम्पशन होगा। 80C में क्या क्या आता है, जैसे LIC, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन, होम लोन के ऊपर जो प्रिंसिपल अमाउंट आप दे रहे हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान UTI, म्यूचुअल फंड ऑफ LIC, ट्यूशन फीस पेड बाय एन इंडिविजुअल टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी 2 ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन। ये सब 80C में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है LIC, प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, कोई म्यूचुअल फंड, ये सब इसमें आ गया 80C में। 80CCC पेंशन प्लान है। आप कोई पेंशन प्लान किया है जो 60 एज के बाद आपको पेंशन मिलेगा, जैसे आपका SBI लाइफ की LIC, इसमें आप पेंशन प्लान किया है तो उसके ऊपर आप जो ईयरली जो फंड दे रहे हो वो 80CCC में आएगा। और 80CCD1 जो है NPS, जो एम्प्लॉय शेयर है। एम्प्लॉय शेयर अभी कितना है, बेसिकली हमारा बेसिक पे का 10% है, गवर्नमेंट शेयर 14% है, नहीं कि? तो हमारा जो शेयर है 80CCD1 में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक पे, ओके। तो 80CCD1 में वो आता है, आपको 10% ऑफ बेसिक पे लेना है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो ये तीनों मिलाकर 80C, 80CCC एंड 80CCD1, ये तीनों में तीनों एग्रीगेट होकर मैक्सिमम एग्जेम्पशन होगा 1.5 लाख। तो 80C में बोल दिया 80CCC पेंशन प्लान है, और 80CCD1 जो बेसिकली एम्प्लॉई शेयर है NPS का। तो ये तीनों मिलाकर 80CCE होता है एक सेक्शन, उसमें 80C, 80CCC, 80CCD1 में मैक्सिमम एग्जेम्पशन 1.5 लाख है। ये सेक्शन 80CCE, 80C, 80CCC, 80CCD1 1.5 लाख एग्जेम्पशन होगा। 80CCD1B, सपोज आप खुद 80CCD1B सपोज आप खुद NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 के ऊपर आपको एग्जेम्पशन छूट मिलेगा। तो वहाँ पर 1.5 लाख मिला 80CCE में, 80C, 80CCC, 80CCD1। और ये जो 80CCD1B है, हम इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, हमारा जो NPS अकाउंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें हमको जो छूट मिलेगा मैक्सिमम 50,000 मिलेगा, ओके। वहाँ पर 1.5 लाख हो गया, यहाँ पर 50,000 हो गया। तो एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹50,000 इज अलाउड फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड टू NPS अकाउंट ओवर एंड अबव 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80CCE, 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट 80CCD2। 80CCD2 में क्या है, जो गवर्नमेंट शेयर है। 80CCD2 जो गवर्नमेंट शेयर है अभी 14% जो दे रहा है,
हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर जो 14% दे रहा है वो यहाँ पर डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। 80/62 बेसिकली इट इज़ द शेयर ऑफ एम्प्लॉयर, राइट। ये इस सेक्शन में डायरेक्टली वो एग्जेम्प्ट होगा, जितना गवर्नमेंट शेयर है वो माइनस होगा। ये हो गया। अंडर सेक्शन 80D एक मेडिकल इंश्योरेंस है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर, तो यहाँ पर आप मेडिकल इंश्योरेंस किया है सेल्फ फैमिली चिल्ड्रन, सेल्फ फैमिली चिल्ड्रन 25,000, मैक्सिमम 25,000 एग्जेम्पशन होगा। यदि आप के लिए 25,000 है और आपका पेरेंट्स जो है सीनियर सिटीजन नहीं है, आपका पेरेंट्स, तो आपका फैमिली के लिए 25,000 है, आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके लिए सेपरेट आप किया है मेडिकल इंश्योरेंस, तो उसके लिए भी 25,000 है, तो यहाँ पर 50,000। मगर यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन नहीं है। नेक्स्ट एक और एक ऑप्शन है, आप लिया है फैमिली के लिए लिया है, वो 25,000 है और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो पेरेंट्स जब सीनियर सिटीजन हो जाएंगे 50,000 मेडिकल इंश्योरेंस होगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 75,000। आपके लिए 25,000 मैक्सिमम एग्जेम्प्ट होगा और आपका पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 50,000 होगा। और यहाँ पर एक हेल्थ चेकअप आता है, हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम 5,000 उसी में इंक्लूड होता है 25,000 में। आप कभी कभी हेल्थ चेकअप कर दिया, हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम 5,000 का छूट मिलता है, मगर वही 25,000 का अंदर में होता है। जैसे कि एग्जांपल है, आप मेडिकल इंश्योरेंस में 22,000 सपोज इन्वेस्ट किया मेडिकल इंश्योरेंस में और हेल्थ चेकअप में 5,000 किया, टोटल हो गया 27,000, मगर आपको मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन मिलेगा 25,000। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर 75,000 मिलेगा। थर्ड ऑप्शन जो है, आपका फैमिली बेसिकली बोथ इंडिविजुअल फैमिली एंड पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स, आपका जो ये जो फैमिलीज आप जिसके लिए ले रहे हो वो अबव 60 ईयर्स और आपका पेरेंट्स भी अबव 60 ईयर्स, तो दोनों के लिए 50,000 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 लाख हो गया। तो 3 ऑप्शन है। ओके, तो फैमिली के लिए मैक्सिमम 25,000, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है 25,000 50,000। सेकेंड ऑप्शन में आपके लिए 25,000 या आपका फैमिली के लिए, और आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, वहाँ पर 75,000 मिलेगा। और यहाँ पर दोनों, सपोज आपका फैमिली जो है वो मोर देन 60 ईयर्स और वहाँ पर आपका पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, वहाँ पर 1 लाख एग्जेम्पशन मिलेगा। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग है, यदि आप जो सीनियर सिटीजन आपका पेरेंट्स है उनके ऊपर आप कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर, ओनली सीनियर सिटीजन, ओके, ओनली पेरेंट्स दे बिलोंग्स टू सीनियर सिटीजन, ओनली पेरेंट्स दे बिलोंग्स टू सीनियर सिटीजन, उनके ऊपर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो मैक्सिमम 50,000 एग्जेम्पशन होगा, मगर उनके नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा। तो स्टार मार्क में द एक्सपेंडिचर इज अलाउड फॉर द डिडक्शन व्हेन नो मेडिकल इंश्योरेंस इज पेड फॉर द सीनियर सिटीजन, द मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट इज ₹50,000। तो वहाँ पर मेनली आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनके ऊपर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो और उनके नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तब वहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 मिलेगा। फिर चलेंगे अंडर सेक्शन 80DD। अंडर सेक्शन 80DD में क्या है, जो टैक्स पेयर है उसका कोई डिपेंडेंट है वो डिसेबल है। समझ में आया? टैक्स पेयर खुद टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स पेयर का कोई डिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट जो सपोज उसका सॉन की, उसका डॉटर, कोई उसका ब्रदर सिस्टर, ये हो सकते हैं, और वो डिसेबल है। उनका रिहेबिलिटेशन, उनका ट्रेनिंग, उनके ऊपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो खर्च होता है, तो उसके ऊपर जो बेसिकली यहाँ पर दिया है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल 2015-16 75,000 है। जो डिसेबिलिटी होगा वो मोर देन 40% होगा, मोर देन 40% बट लेस देन 80%, वो माइनर डिसेबिलिटी कहा जाता है। मोर देन 40% जो डिसेबिलिटी होगा, मोर देन 40%, लेस देन 80%, उस केस में 75,000 डिडक्ट होगा। यहाँ पर जो टैक्स पेयर का जो डिपेंडेंट है वो डिसेबल होगा और उसके ऊपर आप कोई मेडिकल एक्सपेंस कर रहे हो, सपोज उसके ऊपर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है, कोई ट्रेनिंग की रिहेबिलिटेशन में कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो उसमें 75,000 क्या होगा ना, एग्जेम्पशन होगा। माइनर डिसेबिलिटी में, जब डिसेबिलिटी मोर देन 40% बट लेस देन 80%, क्लियरली मेंशन किया है। द टैक्स पेयर हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिफरेंट लेबल डिपेंडेंट्स, क्लियर। और सिवियर डिसेबिलिटी इक्वल टू 80% एंड मोर देन दैट, उस केस में 1,25,000 तक एग्जेम्पशन होगा। यदि आप खर्च कर रहे हो
ओके, कोई मेडिकल एक्सपेंस आपका हो रहा है रिहेबिलिटेशन में, ट्रेनिंग में, और यहाँ पर सीवियर डिसेबिलिटी केस में 1,25,000 एग्जामेशन होगा। मगर यहाँ पर डिपेंडेंट है, टैक्स पेयर खुद नहीं है। 80 DD अंडर सेक्शन 80 DDB यदि चाहे खुद टैक्स पेयर और कोई डिपेंडेंट, चाहे स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, तो यहाँ पर दोनों लेना है। अंडर सेक्शन 80 DDB द बेसिकली द असेसी हिमसेल्फ, इट मीन्स द टैक्स पेयर हिमसेल्फ और हिज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स। यदि वो कोई सीवियर डिजीज जैसे कैंसर, एड्स, रेनल फेलियर, इसमें वो सफरिंग है, तो इस केस में डिडक्शन 40,000 होगा जो आपका खर्च हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्लियर एक्सपेंसेस एक्चुअली पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस एंड एलिमेंट्स, कैंसर, एड्स, रेनल फेलियर एटसेट्रा फॉर असेसी हिमसेल्फ और होली डिपेंडेंट स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स अप टू ₹40,000। मगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख 80 DDB में। मगर ये सेक्शन में जो सीवियर डिजीज है, चाहे खुद टैक्स पेयर और उसका डिपेंडेंट, जो मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है उसके इसमें 40,000 एग्जाम्पशन होगा और सीनियर सिटीजन में 1 लाख होगा। अभी 80E जो है, जो एजुकेशनल लोन लिया है ना, एजुकेशनल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फुली एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, ओके, पूरा फुली एग्जेम्प्ट होता है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग इनिशियल ईयर एंड 7 सक्सीडिंग ईयर्स, आपको याद रखना है। इट मीन्स 8 ईयर्स इनिशियल ईयर एंड देन नेक्स्ट जो 7 सक्सीडिंग ईयर्स के लिए जो भी एजुकेशनल लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो फुली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 80E। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन को याद रखना है, फुली एग्जेम्पशन है। ओके, इट मीन्स लगभग 8 ईयर्स। नेक्स्ट आएगा 80E, एक ऑप्शन है वही होम लोन के ऊपर। यहाँ पर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आप लोन लिया है, फाइनेंशियल ईयर 2016-17, अप्रैल 1, 2016 टू मार्च 31, 2017, उसके अंदर आप होम लोन लिया है और वहाँ पर जो होम लोन होगा, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन अप टू ₹35 लाख बाय टैक्स पेयर। 35 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, जो होम लोन होगा वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। और वो सैंक्शन होगा कब ना, फाइनेंशियल ईयर 2016-17, और कोई नहीं फाइनेंशियल ईयर में, और कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं लेना है। फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, उसका जो वैल्यू होगा वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, और जो होम लोन आपको लेना है वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, और जो होम लोन सैंक्शन होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में होगा। और ये फास्ट प्रॉपर्टी आपका होगा। ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टैक्स पेयर शुड नॉट ओन एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। द डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। तो ये जो अंडर सेक्शन 24B है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कितना है वहाँ पर, मैक्सिमम 2 लाख है, और ये 50,000, तो इट इज ओवर एंड अबव 2 लाख। ये मिलेगा तो एक्स्ट्रा 50,000 मिलेगा। मगर यहाँ पर जो कंडीशन है, आपका जो होम लोन सैंक्शन हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में हुआ है और आपका फास्ट प्रॉपर्टी है, और जो प्रॉपर्टी आप लिया है उसका वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, और जो होम लोन लिया है वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, और आपका फास्ट प्रॉपर्टी होगा, तो उसके इसमें एक्स्ट्रा 50,000, एडिशनल 50,000 इंटरेस्ट में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जैसे आपका सपोज टोटल होम लोन इंटरेस्ट 2.5 लाख है, 2.5 लाख एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि नॉर्मली 2 लाख होता है और ये एक्स्ट्रा 50,000। ओके, यदि आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो 2.5 लाख यहाँ पर, माने इट इज ओवर एंड अबव 2 लाख। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B में 2 लाख मिलता है, और ये 80E, ये एक्स्ट्रा 50,000, ये कंडीशन मगर फुलफिल होना चाहिए। फिर 80EE और एक होम लोन के ऊपर और एक कंडीशन दिया है अभी कि सबका पक्का घर होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी लोन आप लिया है 2019 फाइनेंशियल ईयर और अप टू 2022 मार्च 31, क्लियरली मैं मेंशन कर दिया। देखिए, ए डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स अप टू ₹1.5 लाख इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80EEA। This deduction is over and above the deduction of ₹2.5 lakh for interest payments available under section 24B of the Income Tax Act. ठीक है, taxpayers can claim a total deduction of ₹3.5 lakh for interest on home loan if they meet the conditions of section 80EEA। मगर यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका जो होम लोन
सैंक्शन हुआ है वो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2019 1 अप्रैल 2019 टू मार्च 31 2022, क्योंकि ये करेंट ईयर स्लैब के ऊपर मैं दे रहा हूँ, जो हमारा जो ये डिस्कशन चल रहा है ओल्ड टैक्स रिजाइम के ऊपर, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए है। क्लियर? तो आपको याद रखना है जो 80E है वहाँ पर जो लोन सैंक्शन हुआ है वो अप्रैल 1 2019 टू मार्च 31 2022, उसके अंदर होम लोन सैंक्शन हुआ है। तब आपको एक्स्ट्रा 1.5 लाख जो सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में 2 लाख के ऊपर एग्जेम्पशन है, और उसके अबव में 1.5 लाख के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा। तो मैं टोटल 3.5 लाख इंटरेस्ट के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा, और कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। यहाँ पर क्लियरली दिया है हाउस लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर बाइंग ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और यहाँ पर जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी ₹45 लाख और लेस। ओके, जो वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी होगा वो ₹45 लाख और उससे लेस होगा। और होम लोन जो सैंक्शन होगा वो अप्रैल 1 2019 और मार्च 31 2022 के अंदर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लोन सैंक्शन हुआ है और आपका वैल्यू प्रॉपर्टी का वैल्यू 45 लाख और लेस है। एंड द टैक्स पेयर शुड बी द फर्स्ट होम बायर होगा। द टैक्स पेयर शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आज ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। और कारपेट एरिया का बात आता है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कारपेट एरिया जो हाउस आप एक्विजिशन किया है 645 स्क्वायर फुट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और अदर एरियाज में कारपेट एरिया 968 स्क्वायर फुट। ओके, इन एनी अदर सिटीज और टाउन्स, ये कंडीशन फुलफिल करना होगा। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोन सैंक्शन होगा वो अप्रैल 1 2019 टू मार्च 31 2022 के अंदर सैंक्शन होगा। फास्ट प्रॉपर्टी होगा, और जो प्रॉपर्टी आप एक्विजिशन किया है, जो बिल्डिंग आप एक्विजिशन किया है, उसका वैल्यू 45 लाख और उससे कम होगा। ठीक है, और उसमें जो कारपेट एरिया को आपको याद रखना है। और ये बेनिफिट ले रहे हो तो ये तो फर्स्ट टाइम होम बायर है ना, तो 80EEA एक सेक्शन है, इसमें एक्स्ट्रा 1.5 लाख के ऊपर मिलेगा। इट इज़ ओवर एंड अबव 2 लाख। तो यहाँ पर टोटल 3.5 लाख आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपको पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा। तो वहाँ पर सेक्शन 24B में मैक्सिमम 2 लाख और यहाँ पर 1.5 लाख 80EA, यदि आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। और एक मजा बात आता है 80EEB में, आप कोई लोन लेकर कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद रहे हो तो उसके ऊपर आपको 1.5 लाख एग्जेम्पशन मिलेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल, आप लोन लेकर आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदा लोन लेकर, और जो लोन लेकर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदा और वो जो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसके ऊपर 1.5 लाख एग्जेम्पशन होगा। 80EEB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्जेक्ट टू ए सर्टन कंडीशन, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख। डोनेशंस के ऊपर आएंगे 80G, जो 100% जो हम डोनेट करेंगे वो एग्जेम्पशन होगा। तो किस किस केस में आपको याद रखना है, नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, an approved university or educational institution of national eminence, fund set up by a state government for the medical relief to the poor, national illness assistance fund, national blood transfusion council or to any state blood transfusion council, national trust for welfare of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities, national sports fund, national cultural fund, fund for technology development and application, National Children's Fund, Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund, Africa Public Contributions India Fund, Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Fund, National Fund for Control of Drug Abuse, Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund, Prime Minister Cares Fund। तो इसमें 100% ये जो हम डोनेट करेंगे 100% डिडक्शन होगा। मगर वहाँ पर जो डोनी है उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, ये सबको आपको पिन नंबर ये सब याद रखना है, क्योंकि आप जब ITR भरोगे तब उसको देना है। जैसे अभी हम प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में हम डोनेट किए तो उसमें दिया है जो फंड जा रहा है वो अंडर सेक्रेटरी फंड्स को जा रहा है और पैन नंबर है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO साउथ दिल्ली ऐसे एड्रेस है, पिन नंबर 110011 ऐसे वो पूरा डिटेल्स चाहिए, क्योंकि वो जब हम ITR रिटर्न फाइल करेंगे हम उसको पेमेंट किया है, आपको सर्टिफिकेट लेना है और वहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, और आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, इंडियन नावल बेनिफोलेंट फंड एंड एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, इसमें 100% डिडक्शन है।
50% डिडक्शन कहाँ पर होगा? डोनेशन एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 50% डिडक्शन होगा, इसमें डोनेट करोगे। प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और डोनेशंस फॉर रिनोवेशन और रिपेयर्स ऑफ नोटिफाइड टेम्पल्स, इसके इसमें 50% डिडक्शन होगा। ओके राइट, तो ये 80G हो गया। 80GGC में आता है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। सेक्शन 80GGC में सपोज कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, और यू कैन अवेल दिस डिडक्शन ओनली इफ यू पे बाय एनी वे अदर देन कैश। अदर देन कैश में नहीं देना है, अदर देन सपोज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 80GGC में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसके ऊपर वो एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, 80GGC कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में बताया, जो सेविंग अकाउंट आपका है उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो एग्रीगेट इंटरेस्ट मिल रहा है, फास्ट इसको आप ऐड कर दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फास्ट उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐड करना है। यदि आप ऐड करोगे तब यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में 80TTA में। और सीनियर सिटीजन के लिए ये 50,000 होगा। 80TTB में मेंशन नहीं किया, मगर सीनियर सिटीजन के लिए सपोज सेविंग अकाउंट के ऊपर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में देखा रहे हैं, तो उनको जो एग्जेम्पशन मिलेगा 80TTB में मिलेगा उनको ₹50,000, और एज यूजुअल हमको 80TTA में मिलेगा। मगर एग्रीगेट इंटरेस्ट को जो सेविंग अकाउंट के ऊपर मिल रहा है हम उसको पहले शो करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, तब हमको 10,000 यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा 80TTA में। अंडर सेक्शन 80U आ गया, ये भी डिसेबिलिटी के ऊपर है। ए रेसिडेंट इंडिविजुअल हु हैज बीन सर्टिफाइड एज ए पर्सन विथ ए डिसेबिलिटी बाय द मेडिकल अथॉरिटी। सपोज मेडिकल अथॉरिटी डिक्लेयर किया है, मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट देता है डिसेबिलिटी के ऊपर, तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 80U में वहाँ पर जो था 80DD में, अंडर सेक्शन 80DD में वहाँ पर टैक्स पेयर का डिपेंडेंट के ऊपर जो वो खर्च कर रहा है, जैसे ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन। और यहाँ पर अंडर सेक्शन 80U में आपको डॉक्टर डिक्लेयर करेगा, आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपका डिसेबिलिटी है, जैसे माइनर और सीवियर। तो डिसेबिलिटी माइनर डिसेबिलिटी जो 40% से ज़्यादा और लेस दैन 80%, और जो सीवियर है 80% और उससे ज़्यादा, तो उसके इसमें वही 75,000 इट मीन्स जो नॉर्मल डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी जो होगा मोर देन 40% एंड लेस देन 80%, और 1,25,000 मिलेगा सीवियर डिसेबिलिटी। ठीक है, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल हु हैज बीन सर्टिफाइड एज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी बाय द मेडिकल अथॉरिटी कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80U। ओके, यहाँ पर एक फॉर्म होता है फॉर्म 10IA, इस फॉर्म में मेडिकल अथॉरिटी डिक्लेयर करेगा। तो सेक्शन 80DD अलग है। DD जो है वो टैक्स पेयर का डिपेंडेंट के ऊपर है, डिसेबिलिटी के ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंस होता है। मगर यहाँ पर सेक्शन 80D प्रोवाइड्स टैक्स डिडक्शंस टू द फैमिली मेंबर्स एंड द कीन ऑफ द टैक्स पेयर विथ ए डिसेबिलिटी, वेयर सेक्शन 80U जो ये सेक्शन है प्रोवाइड्स डिडक्शंस टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर विद ए डिसेबिलिटी, मैंने डिसेबिलिटी टैक्स पेयर हिमसेल्फ वहाँ पर जो डिपेंडेंट के ऊपर है, और ये जो 80U में टैक्स पेयर हिमसेल्फ क्लियरली मेंशन किया है, वेयर सेक्शन 80U प्रोवाइड्स डिडक्शंस टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर विथ ए डिसेबिलिटी हिमसेल्फ। वहाँ पर डिपेंडेंट है 80DD में, और यहाँ पर जो खुद का यहाँ पर ओनली सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आपका माइनर डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी। मगर वहाँ पर जो होगा डिपेंडेंट के ऊपर जो खर्च होता है 80DD में, सेक्शन 80DD में डिपेंडेंट के ऊपर जो खर्च होता है जैसे रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग, उस केस में वही 75,000 1,25,000 लिमिट है। और यहाँ पर यदि खुद टैक्स पेयर वो डिसेबिलिटी उसको सर्टिफिकेट उसके पास है और डॉक्टर उसको फॉर्म 10IA में डिक्लेयर करता है, फॉर्म 10IA में, तो उस केस में वही 75,000 1,25,000 एग्जेम्पशन है। राइट, तो ITR 1 हम जो भर रहे हैं, फॉर यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन को याद कर लीजिए। फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, याद रखना है, अदर सोर्सेस इंटरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000। आप ITR 1 में जब फिलअप आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, आपका इनकम अप टू 50 लाख होना चाहिए, और वन हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, और अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट में बताया, अदर सोर्सेज जैसे फैमिली पेंशन आता है, कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है, कि यानी कैजुअल इनकम है, और एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000, तब आप ITR 1 में आप रिटर्न फाइल करोगे।
अंडर सेक्शन 139(1) जो ओरिजिनल फाइल इनकम टैक्स रिटर्न हम कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट। अंडर सेक्शन 139(4) आफ्टर ड्यू डेट हम कर रहे हैं मगर विद इन असेसमेंट ईयर, आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अभी जो चल रहा है जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का अभी रिटर्न फाइल हो रहा है, असेसमेंट ईयर जो है 21-22 ये चलेगा मार्च 31 के अंदर, तो उसके अंदर आप कर रहे हो तो सपोज ड्यू डेट चला जाएगा, उसके बाद आप मार्च 31, 2022 के अंदर करना है, तो अंडर सेक्शन 139(4). अंडर सेक्शन 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न, आप रिटर्न भर दिया मगर उसको चाहते हो कि आप रिवाइज करोगे तो आप अंडर सेक्शन 139(5) में रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन। फैमिली पेंशन अभी मैं बताया था, इट इज़ इंक्लूडेड इन अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। और फैमिली पेंशन जब मिलता है आपको एक डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन कैसे मिलता है ना, 33 होल ऑफ 1/3% ऑफ सच पेंशन और मैक्सिमम ₹15,000 हुई, इन दोनों में से जो लेस होगा, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। फैमिली पेंशन तो ऐड होगा अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में, और यहाँ पर एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57II। ओके, फैमिली पेंशन केस में अंडर सेक्शन 57II बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो 33 होल ऑफ 1/3% ऑफ फैमिली पेंशन और ₹50,000 नहीं, और ₹15,000 व्हिच एवर इज लेस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 234A को चलेंगे। अंडर सेक्शन 234A इंटरेस्ट इज लेविड फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें डिले होगा, तो जब डिले होगा देन इंटरेस्ट इज लेविड एट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ, 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज लेविड फ्रॉम द पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। सपोज फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि सितंबर 31 के अंदर नॉर्मली आपको ITR फिलअप करना है, सो सितंबर 31 के बाद आप फाइल कर रहे हो। जैसे सपोज अक्टूबर 5 में किया तो अक्टूबर 5 मीन्स वो पार्ट हो गया, मैंने चला गया, तो अक्टूबर पूरा अक्टूबर पार्ट हो कि होल हो, आपको देना है 1% इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट इंपोज किया जाएगा। तो डेडलाइन आपको देखना है कि गवर्नमेंट जो डेडलाइन दिया है किस डेडलाइन के अंदर हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैं बताया सितंबर 30 तक, सपोज मेरा एग्जाम्पल में सितंबर 30 है, और उसके बाद आप सपोज आप फाइल कर रहे हो तो अक्टूबर 3 में या अक्टूबर 2 में, तो 1 मंथ के लिए आपको देना पड़ेगा, 1 मंथ के लिए 1% के हिसाब से, तो वैसे ही एवरी मंथ 1% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ये अंडर सेक्शन 234 है। जो अंडर सेक्शन 234B है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट इंपोज होता है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज लेविड इन फॉलोइंग 2 केसेस। व्हेन द टैक्स पेयर हैज फेल्ड टू पे एडवांस टैक्स द ही इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। हमको एडवांस टैक्स देना है, ओके हम एडवांस टैक्स हमारा जो TDS हमारा जैसे जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हमारा ऑफिस डिडक्ट करता है, एडवांस टैक्स पेमेंट होता है। Where the advance tax paid by the taxpayer is less than 90% of the assessed tax। अभी चलेंगे assessed tax है, देखेंगे। एक एग्जाम्पल में मैं दे चुका हूँ। टैक्स shall be payable by the taxpayer during the financial year if estimated tax liability of assessee during that year is 10,000 rupees or more। यदि आपका जो estimated tax liability of assessee during that year is 10,000 rupees or more, one example दिया है, आप देख लेंगे। All assessees including salaried employees, self-employed professionals, businessmen, etc. are required to pay advance tax, where the tax payable even after reducing TDS already is ₹10,000 or more। Suppose आपका TDS तो ऑफिस आपका डिडक्ट करता है, सपोज आपका TDS जितना डिडक्ट हुआ उसके बाद सपोज इट मीन्स टैक्स और आपको ज़्यादा देना पड़ेगा 10,000 और मोर, तब ये इसका बात आता है अंडर सेक्शन 234B। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। एडवांस टैक्स मीन्स पेइंग योर टैक्स ड्यूज ऑन द ड्यू डेट्स प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ड्यू डेट मार्च 31 के अंदर हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। उसको देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दे दिया। सपोज योर टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिड्यूसिंग TDS फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 10,000 एंड यू डिड नॉट पे एनी एडवांस टैक्स, और यू पेड एडवांस टैक्स बट एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। तो यहाँ पर देखना है, इसी को आपको देखना है। अंडर सेक्शन 234B में जो इंटरेस्ट इंपोज होता है कैसे होता है, असेस्ड टैक्स होगा टोटल टैक्स माइनस TDS तो ऑफिस डिडक्ट करता है ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, हमारा सोर्स जो ऑफिस है वो TDS डिडक्ट करता है, हमारा सैलरी से एवरी मंथ से डिडक्ट करके उसको जमा किया जाता है। तो
टोटल टैक्स माइनस टीडीएस, वो होगा असेस्ड टैक्स। ठीक है, तो ये जो असेस्ड टैक्स जब होगा मोर देन इट मीन्स 10,000, असेस्ड टैक्स कितना होगा, मोर देन 10,000। उसके ऊपर एक एग्जांपल दे दिया, देखो फॉर एग्जांपल टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रोहित 1,50,000। सपोज रोहित को टोटल टैक्स देना है 1,50,000, मगर टीडीएस जो ऑफिस डिडक्ट किया है 1,30,000, तो यहाँ पर असेस टैक्स कितना हुआ 20,000। सो 20,000 मीन्स मोर देन 10,000, मोर देन 10,000 ये असेस टैक्स होगा, और उसका 90% हम मार्च 31 के अंदर पेमेंट नहीं किया है तो इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर जो असेस टैक्स है वो ₹20,000 हुआ, क्योंकि टोटल टैक्स 1,50,000, टीडीएस जो ऑफिस हमारा डिडक्ट करता है 1,30,000, तो असेस्ड टैक्स हो गया 20,000 एंड ऑप्शन इज मोर देन 10,000। ये लेस देन 10,000 होता कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये मोर देन 10,000 हो गया। तो एडवांस टैक्स हम 31 मार्च के अंदर 5,000 दिया है। ओके, तो एडवांस टैक्स जो दिया है हम ₹5,000 दिया है। तो यहाँ पर ना जो असेस्ड टैक्स है 20,000, उसका 90% कितना है 18,000 है, 90% उसका 18,000 है, मगर हम कितना एडवांस टैक्स दिया है मार्च 31 के अंदर 5,000 दिया है, तो अभी कितना बच गया, तो आप देख ले। सो इंटरेस्ट यहाँ पर इंपोज होगा, तो जितना असेस टैक्स होगा उसका 90% हम पेमेंट करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, उसका 90% से कम हम एडवांस टैक्स दे देंगे, पेमेंट करेंगे मार्च 31 के अंदर, तो तब टैक्स लगेगा अप्रैल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको टोटल टैक्स देना है। कभी कभी क्या है, हमारा अदर सोर्सेस में इनकम आ जाता है, जैसे हमारा फिक्स डिपॉजिट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और उसके ऊपर वो इनकम शो हो जाता है अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में, वो हमारा ऑफिस हमारा टीडीएस एज यूजुअल काटता है, मगर वहाँ पर अदर सोर्सेस ऑफ इनकम आ जाता है, तो उसको मिलाकर हमारा टैक्स सपोज ज़्यादा हो जाता है। और जैसे यहाँ पर रोहित केस में हुआ 1,50,000 टोटल टैक्स है, ऑफिस उसका डिडक्ट किया है 1,30,000, तो यहाँ पर 20,000 हो गया, तो मोर देन 10,000 हो गया। ओके, और उसका 90% वो पेड कर देता एडवांस टैक्स के आकर में मार्च 31 के अंदर, तो टैक्स नहीं लगता। मगर वो जो पेमेंट किया है मार्च 31 के अंदर, जो प्रीवियस जो ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर सपोज 2020-21 मार्च 31 के अंदर वो पेमेंट किया है ₹5,000, तो वो उसका एक्चुअली असेस टैक्स कितना हुआ 20,000 हुआ, तो 20,000 का 90% कितना है 18,000 है, तो उससे कम बेसिकली 90% से कम हो गया ना, तो अभी टैक्स इम्पोज होगा। तो कितने के ऊपर इम्पोज होगा ना, असेस टैक्स कितना हो गया, असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, असेस टैक्स हो गया 20,000 और वो एडवांस टैक्स के अकाउंट में 5,000 दिया है, तो 15,000, तो ये 15,000 के ऊपर अप्रैल से लगेगा टैक्स। सपोज आप जुलाई में इनकम टैक्स भर रहे हो, तो जून, तो बेसिकली अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि जुलाई चाहे 1 हो, वो भी पार्ट हो कि होल हो, वो लिया जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के आकार में 1% के आकार में देना है। इफ ITR ऑन 5th जुलाई में आप पेड कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा, जो 15,000 के ऊपर 4 मंथ्स अप्रैल मई जून जुलाई 1% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आपको देखना है, चेक करना है। वही अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम तो आप इसमें जो ऑफिस आपका डिडक्ट करता है टीडीएस में वो नहीं आता है, तो कभी कभी अदर सोर्सेस से आपका टैक्स बढ़ जाता है, तो आपको चेक करना है आपका टीडीएस कितना कटा है और वहाँ पर आपका टोटल टैक्स कितना आपको पेमेंट करना है। तो जो माइनस कर दोगे वो असेस टैक्स होगा, उसका 90% आपको एडवांस टैक्स के आकार में दे देना है, आप उससे कम हो जाएगा तो टैक्स इम्पोज होगा। तो यहाँ पर जैसे हुआ असेस टैक्स हो गया 20,000 और यहाँ पर एडवांस टैक्स पेड वो मार्च 31 के अंदर ओनली 5,000 पेड किया है, तो 15,000, और टैक्स वो फाइल कर रहा है 5th जुलाई में, तो 4 मंथ्स के लिए अप्रैल मई जून जुलाई 1% के आकार में लग जाएगा टैक्स। ठीक है, फिर चलेंगे अंडर सेक्शन 234C। अंडर सेक्शन 234C में जो आपका टोटल टैक्स एक्सपेक्टेशन है उसको कैसे क्वार्टरली पेमेंट करना है, तो यहाँ पर दिया है, देखिए, इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर जून 15 इज लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट। सपोज आपका टोटल टैक्स जितना होगा उसका 15% जून 15 के अंदर, बिफोर जून 15 में 15% जो आपका टोटल टैक्स होगा, जो एक्सपेक्टेड टोटल टैक्स होगा, उसका 15% से कम होगा, तो वहां पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए लगेगा, क्योंकि आपका स्टार्ट हो गया कितना अप्रैल मई जून, क्योंकि जून बिफोर जून 15 आपको जितना एक्सपेक्टेड टैक्स होल ईयर के लिए होगा उसका 15% आपको पेमेंट कर देना है।
और 15% से कम होगा तो वहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ्स के लिए। 15% ऑफ अमाउंट माइनस टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड बिफोर जून 15, ये कैलकुलेशन है। तो आपको जितना टोटल टैक्स होगा एक्सपेक्टेडली आपको डिटेक्ट कर देना है कि असेस कर देना है कि ईयर में कितना टैक्स देना चाहिए। ओके, कितना टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। ज़्यादा पेमेंट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कम होगा तो मुश्किल होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 15% ऑफ अमाउंट जो टोटल एक्सपेक्टेड टैक्स होगा उसका 15% ले जाओ, माइनस टैक्स ऑलरेडी पेड बिफोर जून 15, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट फिर सितंबर 15, इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर सितंबर 15 इज लेस देन 45% ऑफ द अमाउंट, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट हमारा टोटल टैक्स होगा ईयर में उसका 45% से कम होगा तो फिर 1% इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ्स के लिए। तो कैसे कैलकुलेट होगा ना, 45% ऑफ अमाउंट जो एक्सपेक्टेड है टोटल टैक्स है उसका 45% माइनस टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड बिफोर सितंबर 15। नेक्स्ट है फिर दिसंबर 15, इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर दिसंबर 15 इज लेस देन 75% ऑफ अमाउंट। दिसंबर 15 में जो एडवांस टैक्स पेमेंट होगा पेड ऑन और बिफोर दिसंबर इज लेस देन 75% ऑफ द अमाउंट, जो टोटल अमाउंट का 75% से कम होगा तब वहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ्स के लिए, राइट। और नेक्स्ट वन एक मार्च 15 जो 4th आएगा, इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर मार्च 15 इज लेस देन 100%। मार्च 15 से पहले आपका जो 100% टैक्स है उसको पेमेंट नहीं किया गया तब आपका वहाँ पर 1% इंटरेस्ट लगेगा। ये सेक्शन 234C बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। चलो ओल्ड टैक्स रिजाइम को देखेंगे अभी। लेस देन 60 ईयर्स कैसे टैक्स लाभ है, अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख टू 5 लाख है 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबव 10 लाख 30%। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम। जैसे सीनियर में है इसमें दे दिया अच्छा लेस देन 60 ईयर्स आप देख लीजिए, ये लेस देन 60 ईयर्स हो गया। और यहाँ पर सीनियर सिटीजन लेस देन 80 ईयर्स अप टू 3 लाख उनके लिए नील है, 3 लाख टू 5 लाख 5% है, 5 लाख 1 टू 10 लाख 20% है, अबव 10 लाख 30% है। ओल्ड टैक्स रिजाइम स्लैब सीनियर सिटीजन मोर देन 80 ईयर्स जो अप टू 5 लाख नील है, पूरा टैक्स एग्जेम्पशन है, 5 लाख 1 टू 10 लाख 20% है, अबव 10 लाख 30% है, ठीक है। और यहाँ पर एक मजा बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको रिबेट मिलेगा। सपोज आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होगा, कि आपका इनकम 5 लाख से कम होगा, तो आप याद कर लो जिनका इनकम 5 लाख ओके 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, 5 लाख और 5 लाख से कम है जिनका इनकम, उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और जिनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख और 5 लाख से कम होगा, जिनका टैक्सेबल इनकम पूरा सब नेट इनकम जो होगा सब डिडक्शन होने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख और उससे लेस हो रहा है तो आपको वहाँ पर रिबेट मिलेगा 12,500, क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम है ना फर्स्ट 2.5 लाख टैक्स नहीं है, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% आता है, 12,500 आ जाता है, वो रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। तो आपको यहाँ पर याद रखना है यदि टैक्सेबल इनकम जो नेट इनकम होगा वो 5 लाख और उससे लेस होगा तब वहाँ पर रिबेट मिलेगा सेक्शन 87A। कितना मिलेगा 12,500। 12,500 सपोज आपका जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है तो फर्स्ट 2.5 लाख एग्जेम्पशन है, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% है, वही 12,500। मगर इस केस में पूरा रिबेट हो जाएगा, टैक्स पेबल बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम इतना रिबेट हो जाएगा। आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख और उससे लेस है जो नेट इनकम होगा सभी डिडक्शंस के बाद। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और मैं अभी बताया था US 89 जब हमको एरियर मिलता है 2-3 साल का एरियर मिलता है तब हमको 10E फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है और उसमें हमको रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 89 में। जो रिलीफ मिलेगा वो डायरेक्टली जो टोटल टैक्स होगा उससे माइनस हो जाएगा। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इफ एरियर इनकम रिसीव्ड। और जो सरचार्ज होगा, सरचार्ज कब होता है जब हमारा रेंज ऑफ इनकम जो टैक्सेबल इनकम, जब हमारा टैक्सेबल इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ होगा, जितना टैक्स कैलकुलेशन हुआ है, जितना इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा उसके ऊपर 10% लगेगा सरचार्ज। और जब आपका टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ टू रुपीज़ 2 करोड़ होगा और आप जितना इनकम टैक्स दोगे उसके ऊपर 15% सरचार्ज लगेगा। वैसा ही जब आपका टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ टू रुपीज़ 5 करोड़, टैक्सेबल इनकम क्या है जो नेट इनकम सभी डिडक्शन के बाद, जब आपका टैक्सेबल इनकम रुपीज़ 2 करोड़ टू 5 करोड़ होगा उसके ऊपर जो टैक्स होगा, उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन होगा उसके ऊपर 25% सरचार्ज लगेगा।
बेसाइड टैक्सेबल इनकम ₹5 crore to ₹10 crore सरचार्ज 37% और एक्सीडिंग ₹10 crore ऑल्सो सरचार्ज 37%। तो ये जो टैक्सेबल इनकम इसी रेंज में रहेगा और इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, जो आप इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा उसके ऊपर फिर सरचार्ज लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको याद रखना है। अभी न्यू टैक्स रिजाइम जो है 115 BSC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दे रहा है इनकम ITR जब फाइल कर रहे हो तो ये ऑप्शन दे रहा है कि ओल्ड रिजाइम में दे रहे हो ना न्यू रिजाइम में दे रहे हो। तो न्यू रिजाइम में ये सेक्शन आ जाएगा 115 BSC, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर अभी जो टैक्सेबल इनकम है अप टू 2.5 लाख नील है और 2.5 लाख 1 to 5 लाख 5% है, 5 लाख 1 to 7.5 लाख 10% है और 7,50,000 1 to 10 लाख 15% है, 10 लाख 1 to 12.5 लाख 20% है, 12,50,000 1 to 15 लाख 25% है और अबव 15 लाख 30% है। सो 2.5 लाख गैप में 5% इंक्रीज हो रहा है। इसमें डिडक्शंस नहीं है अंडर, देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन 115 BSC इज द न्यूली इंसर्टेड सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 that deals with the new income tax regime. This section and alternate tax regime was introduced in Union Budget 2020. ये जो यूनियन बजट 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये सेक्शन 115 BSC, ये न्यू टैक्स रिजाइम। तो आपको ऑप्शन देना है कि आप ओल्ड में जाओगे, जो ओल्ड में डिस्कस किया पहले वाला, और ये न्यू वाला। और न्यू वाला में ज़्यादा डिडक्शंस नहीं है। क्या क्या एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस नॉट क्लेमेबल। ये न्यू टैक्स रिजाइम में क्या क्या डिडक्शंस नहीं होगा ये दिया है। कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है, जो अंडर 16 में कोई वहाँ पर डिडक्शंस नहीं है। लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस, जो अंडर सेक्शन 10 में हम डिस्कस किए थे कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो सेक्शन 24B में जो मैक्सिमम 2 लाख था, ये कोई डिडक्शंस यहाँ पर नहीं है। न्यू टैक्स रिजाइम में कोई डिडक्शंस नहीं है। नेक्स्ट वन चैप्टर 6I में जैसे 80C 80D जो मैं बताया था अंडर सेक्शन 80 में जो एग्जेम्पशंस मिल रहा था, यहाँ पर नहीं है, मगर ओनली 80CCD2 है, एक्सेप्ट 80CCD2। 80CCD2 क्या है? जो एम्प्लॉयर शेयर है, NPS में जो एम्प्लॉयर का शेयर है। ओके, NPS में जो एम्प्लॉयर का शेयर है जो 14% वो देता है, वो डायरेक्टली डिडक्शन होगा। अदरवाइज और कोई अंडर सेक्शन 80 में डिडक्शन नहीं है, चाहे 80C 80CCC कि 80CCD1 कि 80D 80DD 80DDB 80E कोई नहीं है, हम सब डिस्कशन कर चुके हैं। ओनली 80CCD2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली जो एम्प्लॉयर शेयर है, जो एम्प्लॉयर शेयर है NPS के लिए, वो डिडक्शन है। और कोई विदाउट एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉर एनी अदर परक्विसाइड्स और अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन इनकम, कोई डिडक्शंस नहीं है। Where the exemptions and deductions available under the new regime, you can claim tax exemption for transport allowance in case of a specially abled person. Specially abled person transport allowance monthly 3,200 है, exempt होता है, वो होगा। वो जो डिसेबल पर्सन है, वो जो कम्यूट करता है रेसिडेंस से ऑफिस को, और वहाँ पर मंथली उसको ट्रैवल अलाउंस के आकर में 3,200 एग्जेम्पशन मिलेगा, वो रहेगा। जो कन्वेंस अलाउंस वो भी रहेगा, उसके ऊपर एग्जेम्पशन होगा, क्योंकि जो कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, वो ग्रॉस इनकम में ऐड होगा और यहाँ पर माइनस होगा। और एनी कंपेंसेशन रिसीव टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर, ट्रैवल और टूर में जो एक्सपेंसेस होता है वो पहले ग्रॉस इनकम में ऐड होगा और यहाँ पर माइनस होगा। ओके, ये ओनली यही एग्जाम्पशन है, अदर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। मगर आपको याद रखना है 80CCD2 वो डिडक्शन होगा जो सेक्शन 80 में, अदरवाइज और कोई डिडक्शंस नहीं है। राइट, तो अभी सर्विस टैक्स थोड़ा जाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्विस टैक्स वी आर ब्रॉट इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 1994 वाइड चैप्टर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994। तो जुलाई 1 1994, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्विस टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ? जो जुलाई 1 1994, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जब लागू हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। उस समय कौन सा कमेटी उसको रिकमेंड किया था ना? डॉक्टर राजाचेलिया कमेटी, याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। राजाचेलिया कमेटी, ये जो सर्विस टैक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 1 1994, उसको रिकमेंड किया था ऑन टैक्स रिफॉर्म। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेवी इन इंडिया कैन बी टर्म्ड एज माइलस्टोन इन इंडियन टैक्स हिस्ट्री। और उस समय मनमोहन सिंह, जो 1994 जुलाई 1 से लागू हुआ, तब मनमोहन सिंह हमारा फाइनेंस मिनिस्टर थे। द इनिशियल रेट वाज ओनली 5% था सर्विस टैक्स एंड वाज लेविड ओनली ऑन 3 सर्विसेज। या इसको याद रखना है, जब ये लागू हुआ तब 3 सर्विसेज के ऊपर उसको इम्पोज किया गया था, टेलीफोन बिल्स, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स ब्रोकर्स। ये 3 सर्विसेज के ऊपर लागू किया गया था। पहले ओनली 5% था, अभी तो बहुत सर्विसेज के ऊपर लागू हो रहा है।
वाजपेयी यहाँ पर देखना है, वाजपेयी सेटअप ए कमिटी हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जीएसटी के ऊपर वाजपेयी सेटअप ए कमिटी हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल असीम दास गुप्ता टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल। जो जीएसटी अभी चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, द असीम दास गुप्ता कमिटी विच इज ऑल्सो टैक्सड विथ पुटिंग इन प्लेस द बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक लेटर केम टू बी नोन एज GSTN इन 2015। ओके, ये इसके ऊपर आपको भी याद रखना है। GST केम इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017। The single GST subsumed several taxes and levies which included central excise duty, service tax, additional custom duty, surcharges, state VAT, ये सब subsume हो गया। सर्विस टैक्स लेविड ऑन, तो सर्विस टैक्स एक्चुअली जो सर्विस प्रोवाइडर है तो वहाँ पर लगता है, मगर जो जीएसटी है, जो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब हम कोई सर्विस अवेल करते हैं, जैसे चाहे आप होटल की, रेस्टोरेंट की, आप कोई एंटरटेनमेंट, तो ये कि एयर टिकट की, ट्रेन टिकट, ये जब हम अवेल कर रहे हैं उसके ऊपर हमको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। मगर यहाँ पर जो है सर्विस टैक्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर देता है। जैसे कोई इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहा है, कोई मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है, तो वहाँ पर उस भी टैक्स हमको जो पेमेंट करना पड़ता है उसके ऊपर वो टैक्स देता है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, जीएसटी और जो सर्विस टैक्स वो डिफरेंट है। जीएसटी में हम जो जब सर्विस हम अवेल कर रहे हैं, जब हम कोई सर्विस को हम सर्विस के ऊपर इट मीन्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे टिकट्स हो, जैसे सपोज होटल बुकिंग हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, जब हम उसको अवेल कर रहे हैं तो अब हमको टैक्स देना पड़ता है, ये जीएसटी में आता है। मगर जो सर्विस प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर, जब कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई इंस्टॉलेशन सर्विस दे दिया, कोई मैनेजमेंट सर्विस दे दिया, तो वो भी टैक्स पेड कर रहे हैं, वो हमसे ले रहे हैं, वो टैक्स पेड कर रहे हैं, वो सर्विस टैक्स में जाएगा। सर्विस टैक्स बेसिकली 15% है, मगर जीएसटी में वो 12 to 18% है। सर्विस टैक्स लेविड ऑन ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन नेगेटिव लिस्ट। अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ एनीथिंग अदर देन गुड्स विल बी, आप जानते हैं कि गुड्स के अलावा जो सर्विसेज है उसको जीएसटी में ला जाता है। तो सर्विस टैक्स लेविड ऑन ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन नेगेटिव लिस्ट। तो ये थोड़ा कुछ चीज़ को आपको याद रखना है। तो थैंक यू, आज इतना ही है। तो फिर मेरा प्लीज़ माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।